हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पोम दैट इज़ द वॉलरस एंड द कारपेंटर. So first we will have a read and then we will just explain and understand it. The sun was shining on the sea, shining with all his might. He did his very best to make the billows smooth and bright. And this was odd because it was the middle of the night. The moon was shining sulkily because she thought the sun had got no business to be there after the day was done. It's very rude of him, she said, to come and spoil the fun. The sea was wet as wet could be, the sands were dry as dry. You could not see a cloud because no cloud was in the sky. No birds were flying overhead, there were no birds to fly. The walrus and the carpenter were walking close at hand. They wept like anything to see such quantities of sand. If this were only cleared away, they said it would be grand. If 7 maids with 7 mops swept it for half a year, do you suppose, the walrus said, that they could get it clear? I doubt it, said the carpenter, and shed a bitter tear. "O oysters, come and walk with us," the walrus did beseech. "A pleasant walk, a pleasant talk, along the briny beach. We cannot do with more than 4 to give a hand to each." The eldest oyster looked at him, but never a word he said. The eldest oyster winked his eye and shook his heavy head, meaning to say he did not choose to leave the oyster bed. But 4 young oysters hurried up, all eager for the treat. Their coats were brushed, their face washed, their shoes were clean and neat. And this was odd because they hadn't any feet. 4 other oysters followed them, and yet another 4, and thick and fast they came at last, and more and more and more, all hopping through the frothy waves and scrambling to the shore. The walrus and the carpenter walked on a mile or so, and then they rested on a rock conveniently low, and all the little oysters stood and waited in a row. "The time has come," the walrus said, "to talk of many things, of shoes and ships and sealing wax, of cabbages and kings, and why the sea is boiling hot, and why pigs have wings." "But wait a bit," the oysters cried, "before we have our chat, for some of us are out of breath and all of us are fat." "No hurry," said the carpenter. They thanked him much for that. "A loaf of bread," the walrus said, "is what we chiefly need. Pepper and vinegar besides are very good indeed. Now, if you're ready, oysters dear, we can begin to feed." "But not on us," the oysters cried, turning a little blue. "After such kindness, that would be a dismal thing to do." "The night is fine," the walrus said. "Do you admire the view? It was so kind of you to come, and you are very nice." The carpenter said nothing, but cut us another slice. "I wish you were not quite so deaf. I've had to ask you twice." "It seems a shame," the walrus said, "to play them such a trick, after we have brought them out so far, and made them trot so quick." The carpenter said nothing, but the butter spread too thick. "I weep for you," the walrus said, "I deeply sympathize." With sobs and tears he sorted out those of the largest size, holding his pocket handkerchief before his streaming eyes. "O oysters," said the carpenter, "you have had a pleasant run. Shall we be trotting home again?" But answer came there none, and this was scarcely odd, because they had eaten everyone. So students, this was all about the poem. If we talk about the summary, अगर हम summary की बात करते हैं तो the poem begins with the walrus and his companion, the carpenter, mourning the presence of so much sand on the beach.
तो क्या है कि पोम जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक वॉलरस है और एक उसका साथी है जो कि कारपेंटर है, और वो दोनों किस बात का दुख मना रहे हैं कि मतलब बीच पे कितनी सारी रेत होती है। दे क्राई ओवर इट अनेबल टू कम अप विद अ गुड वे टू गेट रिड ऑफ इट। और वो बहुत इस बात पे मतलब बहुत रो रहे हैं और उनको बड़ा दुख है कि वो इस बात का कोई हल नहीं निकाल सकते, उपाय नहीं निकाल पा रहे हैं। एज क्विकली एज देयर टीयर्स बिगेन दे स्टॉप एंड बिगिन स्पीकिंग विद सम ऑयस्टर्स। और जैसे ही उनके आंसू बहना शुरू हुए तो वो रुके और वो कुछ ऑयस्टर्स से बात करने लगे, और फिर उन्होंने ऑयस्टर्स को अपने साथ चलने के लिए बोला। ऑयस्टर्स भी उनके साथ चलने लगे, और हालांकि ऑयस्टर्स के पास लेग्स नहीं थे लेकिन फिर भी वो उनके साथ आ गए। दे पॉज डिसाइड टू हैव अ डिस्कशन एंड देन टू ईट। फिर वो रुके और उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वो कुछ डिस्कशन करेंगे और उसके बाद वो खाना खाएंगे। एट दिस पॉइंट देयर इज़ अ चेंज इन द पोम। इस पॉइंट पे आकर पोएम में चेंज आ जाता है एक, और वो चेंज क्या है और क्या पता चलता है, इट इज़ रिवील्ड दैट द टू हैड ट्रिक्ड द ऑयस्टर्स। ये पता चलता है कि ये जो दो थे, वॉलरस थे और कारपेंटर थे, उन्होंने ऑयस्टर्स को ट्रिक किया है, ऑयस्टर्स को बेवकूफ़ बना दिया इन ऑर्डर टू कमिंग विद देम टू ईट देम। मतलब कि उन्होंने उनको साथ भी लेकर आए और उन्होंने उनको ट्रिक से लेकर आए ताकि वो उनको खा सकें। They distract them best they can and then eat them all before they remember to apologize। और फिर वो उनको पूरे रास्ते डिस्ट्रैक्ट करते रहे ताकि उनको बिल्कुल ध्यान न जाए कि वो क्यों लेकर आ रहे हैं उनको साथ में, और लास्ट में वो एक एक करके सबको खा गए और उन्होंने कोई अपोलोजाइज भी नहीं किया। तो ये इस पूरी पोम की समरी थी। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये एक 18 स्टैंजा की पोम है जिसको 6 लाइन के सेट्स में सेपरेट किया हुआ है, ठीक है ना। 18 स्टैंजा की पोम है जिसको कि 6 लाइन के सेट में सेपरेट कर दिया गया है। इट इज़ रिटन बाय लुइस कैरल एंड इस पोम की राइम स्कीम है ABCBDB, ABCBDB विद मोस्टली फुल राइम्स बट विद फ्यू अ हाफ ऑफ राइम्स। कुछ जगह बिल्कुल राइमिंग है, कुछ जगह थोड़ी राइमिंग नहीं है। और अगर हम पोएटिक टेक्निक्स की बात करें, बहुत सारी पोएटिक टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करी गई हैं, लेकिन अभी आपके हिसाब से पोएटिक टेक्निक्स जो हैं वो बताना अभी फ़िलहाल इतना ज़रूरी नहीं है, तो हम इतना ही रखेंगे इसे। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द पोम स्टैंजा वाइज। आज हम कुछ स्टैंजास करेंगे और उसके बाद बाकी के जो स्टैंजास हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे सुन के। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा, हम एक एक स्टैंजा करके चल रहे हैं, आप अपनी बुक में स्टैंजास को मैच कर सकते हो। इन दी फर्स्ट स्टैंजा वी फाइंड द सन शाइनिंग डाउन फियर्सली ऑन द सी। हमने देखा कि जो सन है वो बहुत तेज़ी से समुद्र के ऊपर चमक रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द वेव्स विच आर राइजिंग अप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइड अपीयर शाइनी। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो सागर में जो लहरें उठ रही हैं वो भी सन की वजह से चमक रही हैं। लेकिन दिस इज़ ऑड, ये बहुत अजीब है, सेज द नैरेटर, क्योंकि जैसे नैरेटर्स हमारी स्टोरी में बोलते हैं ये बहुत अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि जो सन है इट डजंट यूजली शाइन एट मिडनाइट, क्योंकि सन तो आधी रात को उगता नहीं है और ये जो पूरा वाक़या हो रहा है ये आधी रात का है, तो ये इसीलिए अजीब है। अगले स्टैंजा में हम देखेंगे इन द सेकेंड स्टैंजा द मून इज़ विजिबल इन द स्काई। The narrator thinks that the moon is sulky because the sun has usurped her place in the sky at the time when the sun's duty is supposed to be done, and the moon is supposed to have taken over. सेकेंड स्टेंजा में क्या है कि मून जो है वो स्काई में विजिबल हो गया है, लेकिन जो नरेटर्स हैं, जो स्टोरी सुना रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि मून जो है ना वो बड़ा दुखी है। मून को बहुत गुस्सा भी आ रहा है और मून थोड़ा सा दुखी भी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसको लग रहा है कि सन ने उसकी जगह ले लिया आके। रात को सन की ड्यूटी ओवर हो जाती है, लेकिन फिर भी रात के टाइम पे स्काई में सन हो गया है, और जिस वक्त सन मून को आना चाहिए उस वक्त सन चमक रहा है। तो मून इस बात से बहुत गुस्सा है और उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है ये बात। लाइक अ लिटिल गर्ल हुज गेम हैज़ बिन इंटरप्टेड midway, the moon believes that sun has ruined any chances of the fun she might have had in his absence। और जिस तरीके से एक छोटी बच्ची का गेम जो है वो ख़राब हो जाता है अगर कोई इसे बीच में
परेशान करता है, तो उसी तरीके से मून को भी ये लग रहा है कि बीच में सन ने आकर उसका सारा जो फन है जो वो कर सकता था सन के ना होने पर, वो बिल्कुल ख़राब कर दिया। फॉर दिस शी कॉल्स द सन रूड, और इस वजह से वो सन को क्या कहता है, मून रूड कहता है। देन विल कम टू द थर्ड स्टैंजा। In the third stanza, frequent repetitions are used to drive home the point that the sea is very wet. In contrast, the sand is very dry. अब थर्ड स्टैंजा में ना बार बार रिपीट हुआ है चीज़ें, और उसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि सी जो है इट इज़ वेरी वेट, सी जो है वो बहुत गीला गीला है, और उसके ऑपोजिट में सैंड जो है वो बिल्कुल ड्राई ड्राई है, सूखी सूखी है। The narrator also asserts that the sky was entirely devoid of two of its other inhabitants, the cloud and the birds. और नरेटर ने ये भी बताया है कि स्काई जो था वो बिल्कुल खाली था, और उसमें जो दो रहने वाले हैं वो थे ही नहीं, और स्काई में रहने वाले दो लोग कौन हैं, क्लाउड्स एंड बर्ड्स। तो ना तो वहाँ पे बर्ड्स थे और ना वहाँ पे क्लाउड्स थे। चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगली वीडियो में आगे का कवर करेंगे बच्चों। एक साथ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अगर आप एक साथ समझेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। रोक कर दोबारा देखिएगा जहाँ से भी समझ में नहीं आता है, और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हो कि क्या चीज़, क्या लाइन आपको समझ नहीं आई, तो मैं आपको बता दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।